Good evening, sir. Good evening, sir. Hello, everybody. Am I audible? Good evening, sir. Hey, Apurva, good evening. Yes, you are. Good evening. Hmm. Hey, Sir, Danny. I want my camera off, sir. Hmm. Okay, so what are we going to talk about? The same audio file, the conversation between the grandfather and the grand. Yes, sir. And I want to urge everybody to be on time. So, guys, it's not okay to come so late. Good evening, sir. Mr. Yogita, ma'am, good evening. Good evening, sir. Good You evening. didn't send, sir, yesterday video. Come on, it is there. Yesterday's video is available, right, everybody? Yes, No, sir, on sir. YouTube. You didn't Yes, send. sir, it is available on YouTube. I didn't find, sir. Sir, you didn't share in the group, so that's why I think Sanyogita ma'am didn't find it. Have you not subscribed to the channel and In don't? YouTube, we didn't find easily, sir. We do not find easily. Oh, you know I try to find it, but I do not find. there is a playlist for your batch. There is a playlist for your batch. Let me show you how you find it. I searched. I searched I it. I, I I couldn't called find you sir and yesterday. I called as well as I messaged you. Oh, Both. I'm so sorry about it. I thought I'd already shared the video, and it was available. Let me show you how you can find it. You go to the channel. Okay, take a look here. This is the channel. Okay. So when you go to the channel, you go to the playlist here. You go to the playlist. 18th I of have December. already What? subscribed your channel, sir. I No. couldn't find yesterday. Uh-huh. It's right here. 5:30, 18th December. Yes. Playlist. You click the playlist and then you find your class. What's your class timing? 5:30, isn't it? Yes, sir. 5:30.
Wow. It's interesting that I can understand why you guys are struggling because that video, say, playlist is not public. I now understand the problem. Okay. It's easy to find the video option. Easy to find the last uploaded video. Right? Yeah, yeah. Yeah. 5:30, 18th December. This is the video. Okay, never mind. Next time, somebody please, if you see that the video is not in the group, the link to the video, but you have watched the video, then please share the link, okay? Anybody can share. I normally share, but because yesterday there were 2 videos, I kind of forgot. Okay. So let's continue with what we are doing here. We are listening to the conversation between the grandfather and the grandson. Good evening. Hmm. Yep. Yesterday Yeah, I of went to course. hospital, sir. All the day so Yes, I ma'am. You wrote that you were not get well. What tired. happened? Yeah, what was wrong? Yes, Blood yes, pressure? I'm not feel. Yes, sir. Blood pressure and my personal problem. I am not well. Okay. You're not okay. Yeah. Hmm. Maybe you should. I hope you are seeing a good doctor. Yes, sir. Good evening, sir. Hey, Ganpat. Good evening. Arti and Saloni both are absent. A lot of people are absent. Guys, I have to tell you that I want you all to be ready here at 5:30 so that the moment I send the link, you join very quickly because look, we have wasted our 10 minutes. Ganpat, I want you all to be on time, okay? Everybody? Okay, sir. So it's 5:30 is your class time. Maybe 10 minutes before 5:30, you should just sit down and start your studies, revision Good of evening, your sir. yesterday's lesson. Hello, Rishikesh. Rishikesh, try not to join so late from tomorrow. Try to be on time. You see, the class time is 5:30. Sometimes No, sir. Light is off. oh, the light was off. Okay, there was no power. There was no power. There was a power cut. There was a power cut. Light nahi thi. There was a power cut. Okay. So what do I say? Yep, just let's make good use of all the 90 minutes, guys. Okay. So be here 5-10 minutes before 5:30, waiting for the link. And the moment I send the link, I want all of you to join as soon as possible. Okay. Now, let's listen to this conversation between the grandfather and the grandson. Anshu beta, you did not understand what I taught yesterday. Perhaps because you didn't watch the recording. Yesterday I taught something that not many people know. मैंने कल ऐसी चीज बताई जो ज्यादा लोग जानते तक नहीं है. ठीक है, टीचर्स भी. जैसे उसने कहा था, did you go to a pop concert? He said, I went to the pop concert. खाली एक की जगह the बोल दिया उसने, है ना? वो बोलना चाह रहा है कि नहीं नहीं कोई भी a pop concert मतलब बहुत सारे पॉप नहीं a pop concert मतलब बहुत सारे pop concert. एक pop एक concert. कोई भी एक कोई भी एक कोई भी एक कोई भी एक कोई भी a pop एंड concert. सर दे यूज फॉर अ स्पेशल ना देखो अंशु, मेरी बात सुनो. कल मैंने जो बताया वो कोई उस यूज को वैसे नहीं जानता. जो मैं बता रहा हूँ गौर से सुनो. मैंने जो कल बताया वो यूज कम लोग यूज जानते वैसे कि वैसे कोई वर्ड यूज होता है. ठीक है, मैंने ए और द का फर्क नहीं सिखाया, मैंने दी सिखाया है. बात समझो सब लोग. कल मैंने ए और द के बीच डिफरेंस नहीं बताने की कोशिश की है. मैंने कल दी सिखाया, दी. ऑलराइट अंशु, तो उसको द मत समझने की गलती करना मेरा बच्चा. ठीक है, वो द नहीं था, दी था. कैसे बोलना था उसको? The दी दी. ऑलराइट,
इट वॉज नॉट ए और इट वॉज नॉट द, इट वॉज दी। पहला लाइन बहुत आसान है। मैंने आपको 2-4 एग्जांपल्स दिए थे, रिकॉर्डिंग देखेंगे आप सारे, रिपीट करेंगे, देखना सिर्फ एक जगह दी बोल के ये एहसास कराया जाता है। जैसे ही कोई आपसे पूछे हैव यू एवर सीन अ मैच, अ क्रिकेट मैच एट ए स्टेडियम, तो ए मैच मतलब कोई भी मैच, कोई एक मैच, कोई भी एक मैच। उसने कहा आई हैव सीन दी मैच, मतलब उसका कहने का मतलब है नॉट जस्ट अनदर मैच, नॉट जस्ट अनदर मैच, कोई ऐसा वैसा मैच नहीं, एक खास मैच, एक स्पेशल मैच। तो ये चीज किसी ने प्रैक्टिस इसलिए नहीं की बिकॉज perhaps people did not watch the recording, so I'll give them time, they will watch and they will practice। ये पहले से तुम जानते हो उसके जैसा कुछ नहीं है, ये याद रखना। तुम पहले से जानते हो उसको मिलाने की कोशिश मत करना, उसमें गलती हो जाएगी नहीं तो। कुछ लोग कभी कभी क्या होता है ना, अक्सर ऐसा होता है कभी कभी क्या, कि अगर आप कुछ जानते हो, मैं कुछ बता रहा हूं तो आप सोचते हो मैं वही चीज बता रहा हूं, लेकिन नहीं। अच्छा बेटा बताना, अंशु बेटा, मैंने जो पहला एग्जांपल है ऑडियो में, क्या है बेटा? डिड यू एवर गो टू अ पॉप कॉन्सर्ट? उसने रिपीट किया क्वेश्चन, डिड आई एवर गो टू अ पॉप कॉन्सर्ट? आई वेंट टू दी पॉप कॉन्सर्ट। एक जगह क्या बोल दिया उसने? The pop concert. दी पॉप कॉन्सर्ट। Good evening, sir. हेलो समीर। A lot of people have their cameras off. Any special thing, guys? I Good mean, some evening. people have their camera off because they have a problem. Apurva is a little unwell, so she is keeping her camera off because maybe she's lying and resting and, attending the class. But what about the rest of you guys? Suleikha, Afreen, Mahfouz, and Shazia and Aisha. What about the rest of you guys? Atif, why do you have your camera off, people? Remember, don't make me say the same thing every day. Good evening, sir. Doesn't sound nice. Nobody can repeat the same thing again and again in a polite way. Sometimes people get a little annoyed. Okay? Sir, I have problem in my eye. Mm-hmm. Well, there is. अपूर्वा, आपको एक बात समझ में आ रही है? जब आप ये लाइन बोल रही हैं तो इससे क्या हो रहा है? I have a problem. नहीं, मतलब मैं इंग्लिश की गलती की बात नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि आप ये लाइन बोल करके क्या कर रही हैं, आपको पता चल रहा है? आप अपने कैमरा ऑफ करने के रीजन को अंडरमाइन कर रही हैं। आप ये साबित करें कि आपका कैमरा ऑफ रहना जरूरी नहीं है। No, आपके sir. पास आपके पास कोई रीजन नहीं है कैमरा ऑफ रखने का, आप ये साबित कर रही है ये लाइन बोल के। आपको एहसास हो रहा है इस बात का? नहीं सर, मैं ये बोलना चाह रही हूँ कि आई में प्रॉब्लम है तो स्क्रीन देखने में ज्यादा दिक्कत होगी, इसलिए मैंने ऑफ किया है। यही तो मैं समझाना चाह रहा हूँ कि आप जो बोल रहे हैं उसमें लॉजिक नहीं है। नहीं समझ पा रही हूँ सर। यही तो। अच्छा, अभी आपका क्या मोबाइल कहाँ रखा है? मतलब मैं चेयर पे बैठी हूँ और मोबाइल ऐसे रखा हुआ है। तो मैं आप सुन रही चेयर पे हूँ। बैठी हैं और मोबाइल सामने रखा है, तो आपके कैमरा ऑन कर लेने से आपकी आंखों को क्या ही देख नहीं रही मुश्किल हो हूँ, सकती? देख नहीं रही हूँ सर, मतलब ऐसे मैं ही समझ फोन रहा रखा है, मैं फोन समझ ऑफ रहा रखा मैं है। समझ रहा मैं समझ रहा हूँ कि आप कैमरे की स्क्रीन की तरफ नहीं देख रही हैं, मोबाइल पे नहीं देख रही हैं। इससे यस कैमरा यस। ऑफ करने की कोई वजह नहीं बन रही, यही मैं कहना चाह रहा हूँ। आप नहीं समझ पा रही इस बात को, नहीं समझ पा रही दोस्तों। Right. नो Yeah, सर, आई understand. मेरा लॉजिक समझ पा रहे हैं? मेरा I बोलने का understand, sir. पॉइंट समझ Yeah, पा रहे हैं? yeah. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yeah. अपूर्वा, आप समझ पा रही हैं मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? Good evening, sir. गुड इवनिंग आरती। सर बट अगर मैं अपना कैमरा ऑफ भी रखूं और आप मुझे देखो नहीं तो फिर मतलब उसमें तो कोई लॉजिक नहीं बनता है ना कि मैं अच्छा, समझ पा रही हूँ। देखें, आपका स्क्रीन पे देखना जरूरी नहीं है। आप मान लो आप ऐसे सामने बैठे हो और सामने मोबाइल रखा हो, ऐसे देख रहे हैं, फिर मैं तो आपको देख रहा हूँ कि आपका कैमरा ऑन है, राइट? और कैमरा ऑन करने से आपके आंखों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आप समझ रही हैं क्या कह रहे हैं हम? मुझे लगा कि आपकी थोड़ी तबीयत खराब है, इसलिए मैंने कहा कि हाँ हाँ बिल्कुल, जिसकी भी तबीयत खराब होती है, दोज पीपल हैव द फ्रीडम टू कीप द कैमरा ऑफ एंड अटेंड द क्लास। लेकिन अपूर्वा ने स्पेशली बोला कि मेरी आंखों को थोड़ी समस्या है,
तो इसलिए मैं कैमरा ऑफ रख रही थी। मैंने कहा ये तो आपने खुद अंडरमाइन कर दिया। अपने अंडरमाइन करना समझते हो, किसी चीज को कम कर देना, उसका वैल्यू कम कर देना, ठीक है, अंडरमाइन कर देना, ठीक है। तो आपने अपने रीजन को अंडरमाइन कर दिया ये कह करके कि मेरी आंखों में समस्या है। आपकी आंखों में समस्या है तो आपका कैमरा ऑफ करने का कोई पॉइंट नहीं बनता। खास करके जैसे मैं समझाना चाह रहा हूँ कि मान लो मेरी आंखों में समस्या है, मैं देख के नहीं बात करूंगा, मैं ऐसे बात करूंगा, मेरे सामने स्क्रीन है लेकिन मैं ऐसे ही रहूंगा, ठीक है। फिर भी आप मुझे देख रहे हो ना, आपका मेरा देख, आप मुझे देख पा रहे हो ना, सारे लोग गौर कर रहे हो। नो सर, बट हाँ, लेट्स सी, आई आई मैंने जो बोला शायद आप नहीं समझे सर। मेरे लेट्स सी। आंख में ना मतलब आई फ्लू हुआ है, तो इस वजह से ना मैं स्क्रीन अपना ऑफ कर रखी हूँ। और मतलब आपकी आवाज मेरे तक आ रही है, लेकिन मैं अपनी स्क्रीन पे नहीं देख रही हूँ। और मतलब अगर फोन कैमरा का कैमरा ऑन हो जाएगा तो क्या होगा? सर वो नहीं मतलब आंख जो है ना, खोलने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है। राइट वाली आई वो जब ऊपर टच हो रहा है ना, तो दिक्कत हो रही है मुझे। अब बात समझ में आ गई दोस्तों। ये आंखों का आराम खाली नहीं देने की बात है, ये विजुअल इफेक्ट की बात है। मान लो कि मेरे चेहरे पे एक बड़ा सा पिंपल हो जाए तो मैं तो पक्का कैमरा ऑफ करने वाला हूं दोस्तों। ऑल राइट, बात समझ में आ रही है? तो अपूर्वा ना अभी आंखें खोल नहीं पा रही हैं अच्छे से, राइट, और इस वजह यस से वो यस कैमरे पे नहीं आना चाह रही हैं। गॉट इट? जैसे यस यस। आरती, रिमेंबर यू हैड अ प्रॉब्लम विद योर आई एंड you were off camera for a few days, that kind यस of. सर। Now we understand, Apurva, why you wanted to keep your camera off. I thought you were just relaxing your eyes, not that you had some visible problems on your eyes or with your eyes, right? I can understand. You have a good reason to keep your camera off. यस सर। Okay, okay. And Shazia Didi, after all the conversation, Shazia Didi's camera is still off. Shazia Didi. एंड रिमेंबर एवरीबॉडी, जस्ट वांट टू टेल यू, कल से हम लोग 5:30 में आपको यहाँ बैठे रहना है। मैं चाहूंगा कि आप सारे ग्रुप में ऑनलाइन देखो मुझे 5:30 से पहले ही, 25 में ही आके बैठ जाओ कि भाई पढ़ाई शुरू होने वाली है। बात समझ में आ रही है? मैं जैसे लिंक भेजूँ सारे के सारे ज्वाइन कर लो। इज दैट ओके? काशिफ, काशिफ का जॉब है तो वो समझ सकते हैं, बट द रेस्ट ऑफ यू गाइज अंडरस्टैंड दिस। Unless you have a good reason, be online 5 minutes before your class time, okay? So that when I send the link, you guys can all join straight away without any delay, because we want to make good use of our time, okay? Now let's continue. um, 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 अगर मैं अपूर्वा की जगह होता तो अपनी प्रॉब्लम बताते समय ये बोलता कि my eyes are a little reddish and I don't want to show my red eyes on camera. I don't want to show my. Red Red eyes on eyes. camera. Red eyes on camera. On Okay. mic. Want to show Yeah. my red eyes on camera. I don't want to show my red eyes on camera. My eyes are not looking good right now. Okay. I don't want to be on camera with those eyes. Okay. Then it would make complete sense, everybody. We wouldn't really get into that conversation. I thought she was just resting her eyes. Resting your eyes, like you're not looking at your eyes are hurting. You know what I mean? Imagine your eyes are hurting. Okay. Hurting means that they are painful. Okay. And you don't want to look at the screen. So sometimes you avoid looking at the screen. But your eyes are visibly no different. Your eyes looks the same, but you feel a little bit of stress and you're not looking at the screen. So that's why I was saying you can look in different direction, but no. When your eyes are visibly red, looking not so normal, then you don't want to be on camera. It's normal, isn't it? Let's continue though. Okay. So unit 6, exercise 6. Unit 6, exercise 6, parts 1 and 2. Grandfather, did you ever go to a pop concert? Did I ever go to a pop concert? Did I ever go to a pop concert? And then he replied, I went to the pop concert.
टोन भी तो बदल गया ना। आई वेंट टू दी Went पॉप to कॉन्सर्ट, उसने सिर्फ ए की जगह दी बोला। ये बताने दी बोला, द नहीं बोला। लोगों द मत समझ जाना इसको, उसने दी बोला है, दी। आई वेंट टू दी पॉप कॉन्सर्ट। मैंने सिमिलर एग्जांपल्स दिए थे। योर इंग्लिश इज गेटिंग बेटर, आर यू गोइंग टू ए स्पोकन इंग्लिश क्लास? आई एम गोइंग टू दी स्पोकन इंग्लिश क्लास। और बोलने का मतलब है क्या, ऐसा वैसा क्लास नहीं जा रहे हैं, है ना, ये वाला मतलब है, हाँ। What do you mean? I, Terry, your grandfather, was at the Beatles concert in August 1965 at Shea Stadium, New York City. So that was a good one, was it? That was the So that was a good one, was it? तो अच्छा था ना। That was a good one, was it? Oh, that was a good one, was it? किसी से पूछा कहाँ से मिठाई ले हो? कहाँ से मिठाई लें? नालंदा से लो। अच्छा है दुकान तो। इट्स अ गुड शॉप, इज इट? इट्स अ गुड शॉप, इज इट? दोनों ही लाइन देखो दोस्तों, गौर से देखना। आपको नहीं पता था, ठीक है, किसने पूछा आपने कहाँ पढ़े इंग्लिश? एसटीसी चले जाओ, अच्छा स्कूल है, अच्छा जगह है पढ़ने के लिए। इट्स अ गुड इंस्टीट्यूट, इज इट? इट्स अ It's a good good institute. Is it? institute. इज It's a इट? good. Is it? Got it Is it a everybody? good institute? Yes, it is. Yes, No, is is it? it? हम कुछ और बता रहे मैम, आप कुछ और हाँ सुन। हाँ हाँ हाँ, कुछ और बता रहे हैं आप। हम क्या बता रहे हैं इसमें वो जो सुनिए। आपने सेंटेंस बोला इसमें 2 बार वॉज आया था। मैं आगे लेके आता हूँ आपके लिए आसानी से। यार मिठाई लेना है, कहाँ से ले यार? अग्रवाल से ले लो। अग्रवाल अच्छा है ना। आपको पता था? नहीं पता था? आपको बताया, सुनिए गौर से। आपको दुकान के बारे में नहीं पता है, सामने वाले ने बताया। बात सुन लो सारे लोग, पहले इस बात को। आपने पूछा कहाँ से मिठाई ले यार? अग्रवाल से ले लो। अग्रवाल अच्छा दुकान है, ऐसा होता है ना, अच्छा यस, दुकान है। तो इसका एक तरीका तो है डायरेक्ट क्वेश्चन का, इज इट अ गुड शॉप? ओके, इज इट अ गुड शॉप? यस, इट राइट। इज। हाँ, लेकिन मैं ये पूछने के लिए बोल ही नहीं रहा हूं, इज इट अ गुड शॉप मत पूछो। क्यों ना पूछो वो भी बता देता हूं। आप मुझे बताओ, आपने जब किसी को कहा कि कहां से मिठाई ले यार, उसने कहा अग्रवाल से ले लो, तो आपको अंदाजा हुआ कि नहीं हुआ कि अच्छा दुकान होगा? अंदाजा हुआ कि नहीं हुआ? यस सर। Yeah. भले ही आप नाम नहीं सुने होंगे। चलिए छोड़िए, अग्रवाल की बात हटाइए। रेनू, आपकी दोस्त कोई बोले कि रेनू यार इंग्लिश सीखने का सोच रहे हैं, तो आप बोलो ना विनय सर के क्लास ज्वाइन कर लो। Yes, sir. Vinay तो sir का ये class करने है। ऐसे, और वो नहीं जानती विनय सर कौन है, Yes, उसको नहीं पता। ओके, आपकी कजन को नहीं पता, आपके कजन को नहीं पता। आपने कहा विनय सर का क्लास ज्वाइन कर लो, तो आपका कजन ऐसा बोल सकता है, विनय सर अच्छे टीचर है ना, मतलब ऐसे करके अच्छे टीचर है, हाँ ऐसा करके कुछ कुछ चलेगा ना। लेकिन उसको अंदाजा तो हुआ है, तभी तो आप बोल रहे हो मेरा नाम, विनय सर का नाम आपने लिया है, उसको अंदाजा तो लगेगा ही कि अच्छे टीचर होंगे, राइट? तो वो एक ऑप्शन है पूछने का डायरेक्ट, इज ही अ गुड टीचर? ठीक है। Yes. लेकिन अगर उसने, आपके कजन ने पूछा इज ही अ गुड टीचर, तो आप बोलेंगे तो फिर हम बता काहे रहे हैं अगर गुड टीचर ना होते तो? आप तेरा जवाब भी दे सकते हो, दे सकते हो कि फिर हम बता क्यों रहे अगर अच्छे टीचर ना होते तो। इसीलिए डायरेक्ट पूछने की जगह इज ही अ गुड टीचर, आप He ऐसे is a good teacher. रहेगा, ही Is इज अ he? गुड टीचर, इज ही Is he? इज अ गुड टीचर, इज ही। इसमें क्या हुआ कि आप थोड़ा ना थोड़ा एक्नॉलेज किए कि अच्छा तुम बता रही हो अच्छा टीचर है ना, ये वाला Teacher एटीट्यूड हो. चला गया। इज कुछ ही। समझ में आ रहा है? कुछ समझ में आ रहा है दोस्तों? चलिए फिर दूसरा Yes. करके देखते हैं। पहले भी बताया आपने सेंटेंस। पहले बताए हैं? हाँ यस सर, बताया। कभी नहीं बताया है। इजेंट ने एक बार बताए थे ना, अच्छे टीचर है ना, हाँ है ना। नहीं, वो चीज नहीं हो रही है, सही होता मैम, यही तो मैं बता रहा हूँ। ये वो चीज नहीं है, प्लीज समझिएगा दोस्तों। जिसको रेनू ने बताया विनय सर का नाम, उसको विनय सर पता भी था कि कौन है विनय सर? No. वो तो वो कैसे अपने तरफ से इजंट ही बोलेगा? नहीं बोल सकता। मेरी गौर से सुनिएगा, मेरी बात गौर से सुनिएगा।
यूनिट 3 में आप लोगों ने एक चीज सीखी, आई टॉट यू समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट इन यूनिट 3, कि अगर मान लो किसी लड़के का थोड़ा बॉडी आवाज कम कर लो। किसी लड़के का बॉडी तगड़ा देख के आप अंदाजा लगाते हैं, क्या देखे आप, बॉडी तगड़ा देखे तो आप बोलते हैं जिम जाते हो ना। बात समझ आई दोस्तों? यहाँ पर आपको किसी ने नहीं बताया कि वो जिम जाता है, आप उसकी बॉडी देख के अंदाजा लगाए कि वो जिम जाता है, तो आप उससे बोलेंगे यू गो टू द जिम डोंट यू। यहां पर देखना टैग, दोस्तों गौर करिएगा, आपने किसी की तगड़ी बॉडी देखी, क्या कहा आपने, यू गो टू द जिम डोंट यू। Yeah. दोस्तों You go to the gym, don't you? गो टू द जिम डोंट यू। आपके घर पे कोई किसी को आपने इनवाइट किया चिकन खाने के लिए या कुछ भी खाने के लिए बुलाया, आपने चिकन सर्व किया और मस्त होके खा रहा है, तो खाते खाते आप देख रहे उसके खाने का अंदाज और आप कहते हैं थोड़ा चिकन बहुत पसंद है ना, उसके खाने के अंदाज से आपने अंदाजा लगा लिया, राइट, तरीके से। तो आपको किसी ने कुछ नहीं बताया, आपने अंदाजा लगाया है, आप बोलेंगे यू You लाइक like चिकन, chicken. चिकन Don't यू you? लव चिकन डोंट यू, You don't you? चिकन इज योर फेवरेट इजंट इट, ऐसे करके, ठीक है। ये सिचुएशन कितना अलग है, यहाँ पर आप अंदाजा लगा रहे हैं, आप मेरे इसको पढ़ाते हुए देख करके अंदाजा लगाते हैं, सर आपको इंग्लिश पढ़ाने में बड़ा मजा आता है, नहीं कैसे बोलेंगे आप, Uh, You take interest You in you teaching. enjoy just you enjoy You the enjoy. classes, You enjoy, don't टीचिंग you? इंग्लिश डोंट यू, don't you? ठीक है। ये आपने अपनी राय रख दी सामने, है ना, आपको अंदाजा लगा, आपको राय आपकी थी, आपने रख दी सामने। सब लोगों को समझ में आया ये वाला, मजा आता है ना? Okay, sir. सब लोगों को समझ में आया ये वाला। Yeah. चलिए आप यहाँ पर हम लोग किसी के बारे में कुछ आपसे अंदाजा लगा के बोलते हैं, ठीक है, कुछ भी बोलिए किसी के बारे में अंदाजा लगा के, जो मन में आए कुछ बोलिए। you enjoy to tease someone, don't you? मेरे बारे में बोल रही रेनू, आई एंजॉय टीजिंग पीपल डोंट आई, है ना। अच्छा, मुझे लोगों को टीज करने में बड़ा मजा आता है, क्योंकि उन्होंने गौर किया मेरे बारे में ऐसा कि मैं टीज करता हूँ लोगों को, ओके, तो उन्होंने कहा यू एंजॉय टीजिंग पीपल डोंट यू, ठीक है, बढ़िया बात। Teasing people, yes sir. Teasing. तो ये अंदाजा आपने लगा रखा। अब जरा गौर से सुनिएगा, यहाँ पर थोड़ा सा फर्क है और इस वजह से सेंटेंस का कितना स्ट्रक्चर बदलेगा, गौर करिएगा। आपसे किसी ने पूछा यार इंग्लिश क्लास ज्वाइन करना चाह रहे हैं, कहाँ जाएं, तो आपने कहा विनय सर का क्लास ज्वाइन कर लो। आपके नाम लेने से क्या साबित हुआ, क्या आपके नजर में, आपके हिसाब से विनय सर अच्छे टीचर, Yeah. Yes, sir. Yes, sir. ये बात उसको तो पता नहीं थी, उसको अंदाजा भी नहीं था इस बारे में, तो अभी पता चला आपसे, भले ही उसने मेरा नाम सुना होगा लेकिन उसको नहीं पता था कि अच्छे टीचर है कि नहीं टीचर है, लेकिन जब आपने मेरा नाम रिकमेंड कर दिया तो आपने उसको बता दिया क्या, विनय सर अच्छे टीचर हैं। Yes, तभी तो yes. मेरा नाम रिकमेंड किया, तो वो कंफर्म कर अच्छा टीचर बने। ऐसा किया होगा आपने, बातचीत हिंदी में किया होगा, किसी का नाम सुनने के बाद, रिकमेंडेशन सुनने के बाद आप बोले होंगे अच्छा दुकान है ना। बात समझ में आ रही है दोस्तों? यस सर। आप साड़ी लेके आए किसी जगह से, आप साड़ी लेके आए, ठीक है, I'm giving you more examples. You bring sarees from somewhere, okay? You bring sarees from somewhere, a shop. आपकी साड़ी बड़ी सुंदर लग रही, दोस्तों को दिखाई आपने, you show your साड़ी to your friends, and your friends, वाह यार बढ़िया साड़ी है, कहाँ से ली यार? तो आपने एक दुकान का नाम ले लिया, तो वो लोग बोलेंगे अच्छा दुकान है नहीं, ऐसे करके बोलेंगे ना वो लोग, नेचुरल कॉन्वर्सेशन है, अच्छा दुकान है नहीं, और वो उनका डिसीजन अच्छा दुकान है किस वजह से बना, अभी आपने जो साड़ी दिखाई जो, इस वजह से सस्ती कीमत पे अच्छी साड़ी आप लेके आ गए हैं। उसने कहा इट्स अ गुड शॉप, जो भी नाम बताया, मान लीजिए शॉप का नाम है XYZ, ठीक है, शॉप का नाम आपने बताया XYZ, तो वो लोग जिसको आपने दिखाया वो कहेगा XYZ इज अ गुड शॉप, इज इट, इजंट इट नहीं बोलना है, ठीक है, Is it? Is it? क्यों इजंट इट नहीं बोलना है? क्योंकि आपको ये बात पहले से आपकी राय होती तो आप बोलते, ये तो आप अभी सुने हैं,
ठीक है, XYZ इज अ गुड शॉप, इज इट? थोड़ा जो बोल रहे हैं आपने पहले कभी ये सुना नहीं होगा, सीखा नहीं होगा, इसीलिए नया है, थोड़ा गौर से समझिएगा। मैंने कहा था कि इस ऑडियो फाइल में बहुत कुछ जानने को मिल सकता है अगर आप कैरी कर पाए तो। अच्छा सुनो सुनो सुनो, आप रोज आते हो मेरे क्लास में, एक चेयर पे बैठते हो आकर के, ठीक है? कोई आज मैंने कहा मत बैठो, टूटा हुआ है, मत बैठो, टूटा हुआ है, तो आप बोलेंगे टूटा हुआ है, आप ऐसे बोलेंगे ना? Yes, sir. Yes, sir. आपको थोड़ा आश्चर्य लगेगा ना? आपके लिए नई जानकारी है ना कि टूटा हुआ है। Yes, sir. आप कह सकते हैं इट्स ब्रोकन, इज इट? क्या बोलेंगे? Broken is It's broken, is it? Broken, ब्रोकन, is इज it? इट? broken पहले is आपने it? सेंटेंस बोल दिया It इट्स is ब्रोकन, broken, is उसके it? बाद आपने सरप्राइज अपना शुरू कर दिया, इज इट? It's broken, is it? This chair is broken, is it? It's दिस चेयर इज broken, ब्रोकन, is इज it? इट? Broken. तो ये पहला लाइन जो है ना, दिस चेयर इज ब्रोकन, वो मायने नहीं रखता। आपने मेन बात तो इज इट पे डालना है, क्योंकि आपको अभी पता चला, आप सरप्राइज्ड हुए। दिस चेयर इज No. ब्रोकन, इज इट? No. Okay, sir. आगे सुनिएगा, एक सांस में बोलना है दोस्तों, रुकना नहीं है। दिस चेयर इज ब्रोकन, इज इट? This chair is Chair is broken, is it? Chair is broken, is it? आगे Is it? सुनिए, आगे सुनिए। कहाँ जाए इंग्लिश सीखने के लिए यार, कहाँ सीखे इंग्लिश? विनय सर का क्लास ज्वाइन करिए। विनय सर इज अ गुड टीचर, इज ही? He's a good teacher. He's a Is he good good teacher. teacher? Is he? Vinay sir is a good teacher, is he? बिना शबनम सर इज आपके आसपास इज इट? शबनम आपके आसपास बहुत सारे बच्चे हैं शायद, और वो बातें कर रहे हैं, and we can hear their conversation. It's a little bit of a noise, okay? Is he? And yeah, तो मेन आपका बात है, आप सरप्राइज, विनय सर इज अ गुड टीचर, इज ही? ओके, फिर आपका जवाब हो सकता है हाँ वेरी गुड टीचर, आप ऐसा ही बोल सकते हैं। Yes. Yeah. आप Yes, बोल sir. सकते हैं ही इज द बेस्ट टीचर एवर, He's the best teacher. He is the he is best the best teacher teacher in ever. Bihar Sharif, he is the best teacher He you is will the best get, he is the best teacher in He is the India, best जो teacher आपको in बोलना है बोल India. सकते हैं, ever. ठीक है? Yeah, he is a very good teacher. Yeah, he is a very good teacher. जो आप बोलना चाहे बोल सकते हैं। Got it, guys? Yes, sir. Any confusions, anyone? Is he? Okay, sir. ये सब चीजें हुई यहाँ पर, अगर आप गौर करो तो यही बातचीत हुई है। उसने कहा I went to the pop concert. What do you mean? I was at the Beatles concert at Shea Stadium in da 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 da. Da. Ah, so it was a good concert, was it? So it was a 1965 at Shea Stadium, New York City. So that was a good one, was it? that was a good one, was it? एक सांस में बोला ना, so that was a good one, was it? पहले बोल दिया that was a good one, फिर लगा दिया was it? That was a good one, was it? ये अंग्रेजों के बात करने का तरीका है दोस्तों, ठीक है? इंग्लिशमैन का बात करने का तरीका है। हम लोग ऐसे नहीं करते हैं, इसलिए सीखने की जरूरत है। अगर हमें करना है ऐसे तो हम कर सकते हैं। That was a good one, was it? तो मतलब अच्छा था ना, ऐसा हिंदी में मतलब अच्छा था ना। Got it? हिंदी में ऐसे ही बोलते हैं ना उस जगह पे, तो मतलब अच्छा था ना। So that was a good one, was it? कहाँ जाएं पढ़ने के लिए? फलना सर के पास चल जाओ, तो मतलब अच्छा पढ़ाते हैं ना, ये बोल देंगे ना, बोलते हैं ना ऐसा? बताना कि अगर कन्विंस हो रहे हो कि हाँ ऐसी तो बातचीत होती है हिंदी में। Yeah, yeah, sir. एक ने कहा कहाँ जाए पढ़ने के लिए, तो बोला फलना सर के पास चल जाओ ना, मतलब बढ़िया पढ़ाते हैं ना। हाँ बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, ऐसी बातचीत होती है ना। ही इज अ गुड टीचर, इज ही? Is it? ही टीचर्स वेल, डज ही? ही टीचर्स वेल, डज ही? आप लोग से हो शायद ना पाए अभी, मुझे भी पता है। इसको प्रैक्टिकली अप्लाई करने के लिए ना बहुत मेहनत लगेगी, बहुत समय लग जाएगा, मुझे पता है। लेकिन दिमाग में चली गई जगह कि हाँ कैसे ये होता है, ये समझ में आ गया है, और Yes, उसका sir. मतलब क्या है ये समझ में आ Yes, गया है। sir. कुछ ऐसी चीजें Yes, sir. होंगी ना जो आप समझ जाओगे लेकिन कर नहीं पाओगे अभी तुरंत। ओके, ये उनमें से एक चीज है। आपको आदत ही नहीं है ऐसे बोलने की, अचानक से कैसे आदत डेवलप कर लोगे? आरती, आयशा, all of you, Shabnam, Shazia, all of you, I don't know why you're still off camera and why are you playing with your camera. Next time I will not Sir, ask my you. camera is not good, sir, so I will not be camera on. Okay, Shabnam. Okay, and now there is no noise. It's really good. You can be unmuted this way.
Shazia, you have not spoken a word since you joined the class. Shazia. Shazia, are you there? Yes, sir. Why is your camera off? खा रही सर. Come again. अरे चाय पी रही हूँ. इंग्लिश में बताओ, ये बोलना आना चाहिए इतना तो. I am drinking tea. Okay, but I'm not going to snatch your tea. तुम्हारा चाय छीन लेंगे हम कैमरा पे आओगे तो? क्या मतलब है तुम्हारा? ऐसे इल्जाम नहीं लगाओ तुम, ऐसे गलत बात है. मेरा कैरेक्टर इतना खराब नहीं है कि हम अपने स्टूडेंट का चाय छीन लें, चाय पीते रहे तो कोई. डोंट डू दिस. हमने ऐसा कभी किसी के साथ नहीं किया है. ओके, ना नेक्स्ट गाइस. ये लड़कियां बहुत फालतू का इल्जाम लगाती हैं. ओके, नाउ लेट्स कंटिन्यू. That was the best concert ever. Okay, That was okay. the best concert ever. That was the best concert ever. तो ever मतलब क्या हुआ कुछ अपूर्वा? That was the best concert ever. अभी तक हुआ नहीं है. अभी तक अभी अभी तक. तक का सबसे बेस्ट. अभी तक अभी हाँ, तक. या That's the best concert ever. अच्छा, अभी तक का बोलने का ये मतलब जब से दुनिया बनी ऐसे वाला फीलिंग लेना है, ठीक है ना? ये वाला फीलिंग Yes. लेना है, ठीक है? ये नहीं कि कोई प्रोग्राम देखना शुरू किए ना, मान लो कोई प्रोग्राम चल रहा है, ठीक है? 10 लोग उसमें से गाना गाए और अभी जो आया ना उसको बोल दिया ही इज द बेस्ट सिंगर एवर. अब बोले अब तक का बढ़िया है. नहीं नहीं सर, ऐसा मत समझ जाना अब तक बोलने पे. इस तरह से ही भाषा जो शब्द होते हैं ना बड़े स्लिपरी होते हैं, दिमाग को कंफ्यूज कर देते हैं. जैसे आप लोगों ने सुन लिया अब तक का बेस्ट, ठीक है? मान लो कि यहाँ पर 5 लोग गाना गाए क्लास में और आखिर में अंशु गाई और उसका गाना बहुत अच्छा लगा, आपको सबसे अच्छा लगा, तो आप बोल देंगे शी इज द बेस्ट सिंगर एवर. और मैं पूछूं क्या मतलब है? सर अब तक का सबसे अच्छा गाई है सर. उसी नहीं, मोमेंट का केवल. ये नहीं गलत नहीं हो गया. हम्म. ये अब तक नहीं है, वो पांचों में वाला अब तक सबसे है. अच्छा है. हम्म. हाँ ठीक है, वो हो गया शी इज द बेस्ट सिंगर सो फार. शी इज द बेस्ट सिंगर सो फार. यहाँ पर का अब तक का वाला मामला आएगा तो ये वाला सो फार. लेकिन जो हमने कहा था एवर मतलब जब से दुनिया बनी है तब से, ठीक है? वैसे वाला फीलिंग कि आज तक अब तक बोले तो आज तक ऐसा सिंगर है ना, या ये वाला फीलिंग. ओके, remember when I told you that I ate fish curry in Kolkata about 16-17 years ago, and I said it was the best fish curry ever. Yes, sir. तो In कभी your Bua's house. तो कभी कभी क्या होता है, आप वर्ड्स में हिंदी में सुनते हैं ना तो उसको कुछ और कॉन्टेक्स्ट में ले लेते हैं. जैसे किसी ने कहा अब तक, ठीक है अब तक सही है, लेकिन अब तक बोलने पे ये भी फीलिंग आ सकती है ना कि तुम अब तक नहीं समझे हो, तो वो वाला अब तक नहीं, बस याद रखना यू आर द बेस्ट टीचर एवर. ओके, लाइक दैट. अभी तक जितने टीचर पर हैं से पढ़ाई किए हैं उसमें से सबसे बेस्ट. Sir, Taj Mahal is a historical place. It is the best moment ever. It's the most beautiful structure ever. It's the most beautiful structure ever. मतलब आज तक उससे सुंदर कोई चीज नहीं बनी. आज तक उससे सुंदर कोई चीज नहीं बनी. The Taj Mahal is the most beautiful structure or monument ever. Yes, it is the most beautiful structure ever. आप अपने भाई बहन से झगड़ा करें और उसके बाद बोले यू आर द वीकेस्ट पर्सन एवर. सबसे दुष्ट हो तुम, आज तक तुम्हारे जैसा दुष्ट कोई नहीं हुआ. यू आर द ओके, मैंने मोस्ट विकेड बोलना था, सॉरी. यू आर द मोस्ट विकेड पर्सन एवर. यू आर द मोस्ट हॉरिबल पर्सन एवर. अपन में भाई बहन को ऐसा बोलते हैं ना आप लोग, तुमसे दुष्ट आज तक दुनिया में कोई नहीं हुआ. ये वाला फीलिंग लेना है, दुनिया में आज तक नो, वो वाला एवर. ठीक है दोस्तों, क्योंकि अपूर्वा फिर उसको ले गई मेरे लाइफ में अपने, तो एवर से वो चीज नहीं आता. आप उसके अलावे कुछ और जोड़ेंगे तो आ सकता है. ठीक है, जैसे यू आर द मोस्ट ब्यूटिफुल पर्सन आई हैव एवर सीन
तब जाके हुआ कि मैंने जितने लोगों को देखा उसमें सबसे सुंदर हूं, ठीक है। लेकिन खाली एवर बोल दे, यू आर द मोस्ट ब्यूटीफुल पर्सन एवर, तो मतलब आज तक दुनिया में तुमसे ज्यादा सुंदर कोई नहीं। यू आर द मोस्ट ब्यूटीफुल पर्सन एवर। आई होप एवर का मतलब समझ में आया आप लोगों को। When we Yes, say sir. Yes, sir. you are the best teacher ever, मतलब you are the best in the world. एंड नॉट ओनली इन द प्रेजेंट टाइम, पास से लेके आज तक, Past अभी तक दुनिया में Okay. आज तक आपसे बढ़िया कोई होबे नहीं किया, ऐसा वाला। Ever, होटल what बनाएंगे। is the spelling of ever, sir? EVER. दैट्स राइट। ओके एवरीबॉडी, Okay, sir. किसी को आपने एवर, ये इस तरह जैसे मैंने बताया, मैंने जब बोला था इट वाज द बेस्ट फिश करी एवर, तो मैंने कहा कि ऐसा फिश करी तो कभी होता ही, उससे बढ़िया तो खा ही नहीं है, ऐसा वाला हो गया, ठीक है। इट वाज द बेस्ट फिश करी एवर, तो एवर इज अ बिग एम्फेसाइजर, ये एम्फेसाइज करता है, राइट। आपने एक पहले भी उसको कहा इट वाज द बेस्ट फिश करी, लेकिन एवर लगा देने से हो गया ना पास्ट में कभी वैसा, ना अभी कभी ऐसा, ऐसा वाला मामला। ओके Ganpat Roy writes, Sachin Tendulkar is the best batsman ever. It means you are a Sachin fan. Right, guys? It means Ganpat is a Sachin Tendulkar. Sachin fan. Ricky Ponting fan will disagree with him. Right, guys? Or Sunil Gavaskar's fan will disagree with him. Do you understand that? It's an Yeah. opinion, right? Ganpat, it's an opinion. If you are a Sachin fan, then you will say this. Moni is a Sachin fan. He will agree with you. But suppose Adib is a Ricky Ponting fan or Virat Kohli fan. He No, will I'm say, not. nah, suppose, then he will disagree with him. He will disagree with your statement. He will say, yeah, he's definitely good. He's not the best ever. He's good, but he's not the best ever. बात समझ में आई दोस्तों? He's good, but he's not the best ever. मतलब अच्छा है, लेकिन ऐसा भी नहीं कि उससे बढ़िया कभी कोई नहीं हुआ। इसका हिंदी करना है तो नेगेटिव करके करो, ठीक से। फिर से बताता हूं, ही इज द वर्स्ट पर्सन एवर, उससे बुरा कोई आदमी दुनिया में कभी नहीं हुआ, इसका ये मतलब निकालना, ऐसे निकालना। हिंदी पॉजिटिव मत निकालना, ऐसे निकालना, इससे बुरा आदमी दुनिया में कभी कभी नहीं हुआ। ही इज द वर्स्ट पर्सन एवर। Oh, sir, he is the worst person ever I met. हाँ, आगे आप लगा दे तो फिर और कोई भी बातें आ जाएंगी ना, है ना। जैसे मैं कहूँ, मैं अगर कहूँ The best. यू नो, महफूज इज द मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट आई हैव एवर टॉट, इसका क्या मतलब हो गया दोस्तों? मैंने जितने स्टूडेंट्स को सिखाया उसमें सबसे इंटेलिजेंट आज तक का महफूज है। महफूज इज द मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट आई हैव एवर टॉट। लेकिन ये सब बाद में, ठीक है दोस्तों, अभी एवर पर रुक जाते हैं। इज दैट ओके? चलिए, अगर मैंने कहा महफूज इज द मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट एवर, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आज तक महफूज से ज्यादा इंटेलिजेंट स्टूडेंट नहीं हुआ। ये मेरी राय होगी, ऐसे मजाक में लोग बोलते हैं, मजाक मतलब कि इतना लिटरली मत ले लेना कि यार तुम तो गलत बात बोल दी, ऐसा थोड़ी हो सकता है, ऐसे नहीं, ये सब इमोशन दिखाने का तरीका है, राइट। आप अपने दोस्त को, जब आपका भाई आपसे झगड़ा करता है तो आप बोलते यू आर द मोस्ट हॉरिबल पर्सन एवर, और वही भाई जब आपको 2000 रुपए कर देता है, पेटीएम कर देता है या गूगल पे कर देता है, तो आप बोलते हैं यू आर द बेस्ट ब्रदर एवर, यू आर द Best brother ever. The best brother ever. में तो राय बदल जाती है लोगों की। क्या बात करते हो यार, क्या बात करते हो आप, सही बात। जान दे देंगे, क्या बात करते हो आप। ओके चलो आगे। अपनी मम्मी को आप लोग अक्सर बोल देते होंगे ना, यू आर द बेस्ट मॉम एवर, Yes, या मुंह पर नहीं बोलते होंगे तो पीछे में जरूर बोलते होंगे। क्या बोलते हैं? you are the best mom. माई मॉम इज द बेस्ट मॉम एवर, मेरी माँ से बेहतर तो कभी कोई माँ ही नहीं हुई, ऐसे बोलते हैं ना हम लोग। Yes. माई मॉम इज द बेस्ट मॉम एवर। एवर का मकसद क्या था? एम्फेसाइज करना। Sir, girls always says my papa is the best papa ever. My papa is the best papa ever. Yes, Sapnam, absolutely. Yes, Girls have that kind of, feelings for their dads. Their dads are superheroes for them.
I hope everybody has understood everything clearly. Tell me about it. Tell Well, me about it. it was kinda exciting and frightening. It was kinda exciting and frightening. I've explained kinda as well. Too. Why frightening? Why frightening? Why frightening? उसने पूछा frightening क्यों बोल रहे हो भाई? Why frightening? The concert was frightening. Why? There were so many fans there. There were so many fans there. There were so many fans there. There was used 2 times. Did you notice? Yes, sir. There were too many fans. There were so many fans there. There were so many fans there. So first there is introductory there, empty there, जिसका कोई मतलब नहीं होता है. मैं बोलूं एक राजा था. इंग्लिश में कैसे बोलेंगे दोस्तों? There was a king. देर का क्या हिंदी हुआ? कुछ नहीं. कोई नहीं हिंदी सर, बस कुछ नहीं. था तो था. एक राजा था, एक लड़की थी. There was a girl. फिर क्या हुआ? कुछ नहीं. ऐसा हो ही नहीं सकता है कि लड़की रहा कुछ ना हो. झमेला हो ही गया. झमेला होएगा दोस्तों. ओके. ओके. एक लड़की थी दीवानी सी. चलो करो इंग्लिश. There was a crazy girl. There was a girl. girl. Kinda crazy. She's Kinda crazy. crazy. Kinda crazy. Kinda समझ गए? Yes, sir. अच्छा दीवानी सी लगा के सी क्या किया? दीवानी सी क्यों बोला? दीवानी खाली क्यों नहीं बोला? मतलब उस जैसी है ना दीवानी. हाँ एग्जैक्टली. तो वहीं पर काइंडा बोलते हैं. बहुत बढ़िया वर्ड है. आपको आदत पड़ जाएगी धीरे धीरे. There was a girl, kinda crazy, kinda sweet. There was a girl, kinda sweet. Kinda crazy and kinda sweet. Okay. All right. ना सर थोड़ा मुश्किल लग रहा है सर. दिस इज काइंडा डिफिकल्ट सर. दिस इज काइंडा डिफिकल्ट. मैंने आपको बताया काइंडा इज यूज्ड टू सॉफ्टन योर टोन. आपका टोन सॉफ्टन करने के लिए काइंडा लगा देते हैं एडजेक्टिव के पहले. ओके. इट्स काइंडा डिफिकल्ट. अरे ये गिफ्ट तुम क्यों नहीं ले रहे हो? नहीं 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 ले सकते. इट्स काइंडा एक्सपेंसिव. नो नो इट्स काइंडा एक्सपेंसिव. आई कांट टेक दिस गिफ्ट. इट्स काइंडा एक्सपेंसिव. ओके. तो काइंडा बस लोग लगा देते हैं एडजेक्टिव से पहले. उसका मतलब होता है सॉफ्ट कर. थोड़ा महंगा लग रहा है, थोड़ा महंगा टाइप का है, ऐसा बोलते हैं हिंदी में. थोड़ा महंगा टाइप का, ऐसा क्यों बोलते हैं? तो वहीं पर इंग्लिश में काइंडा होता है. अब उसका मकसद तुम्हें समझना है. थोड़ा महंगा टाइप का, ये सब बोल के क्या करते हो तुम? अपने महंगा वर्ड को सॉफ्टन कर देते हो. नहीं तो सीधा सीधा बोले महंगा है, वो टोन अलग होता है. राइट. तो महंगा टाइप का यार. इट्स काइंडा एक्सपेंसिव. ओके. Got it, everyone? Yes. 55,000 and the Why frightening? There were so many fans there. Over 55,000. Over means ज़्यादा. more than. More than. Over Yes. 55,000 people. More than 55,000 people. Over 55,000. noise. And the noise. Oh, it was so noisy. It was so noisy. And the noise. और हल्ला. अरे बाप रे, इतना हल्ला कि क्या बताएं. ऐसे ही ना हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में. And the noise. Oh, it was so noisy. ये इमोशंस कैच करना है. मैं ऐसे ऑडियो फाइल क्यों कोर्स में लेके आया? ताकि आपके इमोशन जुड़ सके इंग्लिश के साथ. एंड द नॉइज. ओह इट वाज सो. ये ओ कितना इंपॉर्टेंट है बताइए. एंड द नॉइज. ओह इट वाज सो नॉइजी. बताइए ये सब चीजें इतनी आसानी से कैच हो जाएंगी एक दो बार सुन लेने से? नो सर. बस समझिएगा. इमोशंस कैच करना है आपको. ओके. आपको इमोशंस कैच करना है. एंड द नॉइज. ओह इट वाज सो नॉइजी. Everyone was so excited. Everyone was so excited. Everyone Was so excited. everyone सिंगुलर होता है कि प्लूरल होता है इंग्लिश में? Singular है ना सर? प्रत्येक. Singular. अभी
हम लोगों ने क्या कहा? Everyone was so excited. Everyone. Yes, sir. Everyone is so plural, sir. excited. हाँ हाँ, हम लोग गौर करते नहीं है ना, इसलिए कुछ का कुछ बोलते रहते हैं। एवरीवन के बाद क्या बोल रहे हैं हम लोग? वॉज बोल रहे हैं। वॉज किसके साथ बोलते हैं बताइए तो? Oh, singular के साथ, sir. तो गौर करना है ना, हमें अपनी आंखें खोलनी है, कान खोलने हैं। कब खोलेंगे हम लोग? बोले सर मेरे पास रेंज नहीं है खोलने के लिए। ओके, एवरीवन वाज सो एक्साइटेड, एवरीवन वाज सो Excited. Aarti, what have you done? You're looking so gorgeous. I mean, you are always beautiful, but you're looking so gorgeous. Have you done makeup, Aarti? No, sir. But you're looking gorgeous right now. Everybody, would you agree? Yes, sir. She's Yes, looking sir. gorgeous. Yes, sir. She's looking like one of those actresses from films right now. Sir, मजाक बना रहे हैं. Come again? It's looking like Aishwarya Rai. I don't know about Aishwarya Rai, but yeah, she's definitely looking like an actress. Okay, what did you say, Aarti? क्या बोली आप? मजाक बना रहे हैं आप. सर, ओह अच्छा अच्छा, ठीक है। हाँ, ये तो बिहारी लोग का तरीका है कि कोई कॉम्प्लीमेंट देता तो बोलो मजाक उड़ा रहे हो। एक्सेप्ट मत करो, थैंक यू मत बोलो, बोलो Thank मजाक you. उड़ा रहे हो। क्या मतलब है? ऐसे कोई मजाक उड़ाता है? मेरा मजाक ऐसे उड़ाया करना यार रोज तुम लोग। ये सर यूर लुकिंग हैंडसम, सर यूर लुकिंग ग्रेट सर, ऐसे मजाक उड़ाता है कोई ऐसे टोन में? फिर आपको पता नहीं है कि कब मजाक कर रहे हैं लोग, कब सीरियस बोल रहे हैं ना। ओके, बिहारी लोग बिना बयान नहीं मारता. okay. So the line was, everyone was so excited. Everyone singular है कि plural? क्या पता चला? Singular. Singular है. आगे बोलना है, everyone goes to school कि everyone go to school? Everyone Everyone goes to goes to school. Go to Everyone? goes to school. Goes to school. Everyone likes Vinay sir or everyone like Vinay sir? Everyone Everyone likes likes Everyone Vinay, likes sir. Vinay, sir. एहसास हो रहा है? Yes, sir. Yes, sir. Everyone was so excited. They screamed and shouted. They screamed and shouted. There were over 2,000 policemen there. And There were over 2,000 policemen there. There were over 2,000 policemen there. There were less than 2,000 policemen or more than 2,000 policemen? More than More than 2,000 policemen. there. Yeah, because the word was over, right? Yeah, yeah. What is the opposite? Under. Under, below. नहीं मैम, जैसे मैं Under. बताऊं वही समझिएगा। ओवर का ऑपोजिट क्या होगा दोस्तों? Under. 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 Over का above. No, sir. क्या बात करी Above, सब over. Under. No, Under. sir. No, sir. No, sir. No, Under ना sir. हुआ. Under, yes, sir. Under Over under हुआ ना. 2,000 पुलिसमैन, मतलब 2,000 से ज्यादा पुलिसमैन। ज्यादा पुलिसमैन थे Yes, वहाँ. yes, sir. Under 100 people, under 100 people, Yeah, मतलब under 100. 100 से कम. 100 के 100 अंदर. people के से कम. कम. Less than 1,000. Yes. okay? Yes, sir. There were over 2,000 policemen there. the Beatles finally appeared, And when the Beatles finally appeared, the crowd went wild. the crowd went wild. The crowd went wild. Went wild. Afreen, tell your brother to message me on Telegram. I don't know why he hasn't messaged me on Telegram yet. I told him 5-6 days ago. Okay, Afreen? Tell him to message me on Telegram. Yes, sir. Okay, beta. So, and when the Beatles finally appeared, yeah, finally word का क्या लेना देना यहाँ पे? I'll tell you. जब कोई काम थोड़ा देर से होता है ना, तो हम लोग आखिर में जब हुआ, और जब when the Beatles finally appeared, इसका मतलब Beatles इंतजार के हो बाद गया. आए. Yes. They appeared means came on the stage, okay? They came. So when they finally appeared, अब जब आए, ऐसे हिंदी में मतलब थोड़ा इंतजार करना पड़ा, okay? बात सुन में आई? और जब दुल्हन आई स्टेज पे,
when the dulhan finally came on the stage, okay? आप समझ रहे finally का मतलब? Yes, sir. मतलब अच्छा रुको, she finally said yes. She finally said yes. इसका मतलब तुरंत हाँ बोली थी कि थोड़ा देर के बाद हाँ बोली थी? बाद थोड़ा देर के बाद लास्ट में एग्जैक्टली कौन से वर्ड से पता चला? फाइनली Finally. Papa finally said yes. Papa finally said yes. है ना? For the trip. Papa finally said yes for the trip. इससे क्या पता चला? पापा कभी ना भी बोल रहे थे कि नहीं बोल रहे थे? यस पहले ना बोल रहे थे, फिर Exactly. बाद में हाँ But he कर दिया। finally said yes. Finally का फीलिंग आ रहा है दोस्तों? यस Yeah. Yes, sir. कुछ वर्ड्स के लिए हिंदी करने की जरूरत नहीं, खाली फील लेना जरूरी है. Okay? When the Beatles finally appeared means to The come Beatles in finally front of appeared. someone. Okay? इन फ्रंट ऑफ Correct. Yeah, when the Beatles finally appeared, give me a second. They went crazy. When the Beatles finally appeared, the audience went crazy. They climbed. They went wild. They went crazy. Listen again. They went crazy. They climbed over 2,000 policemen there. And when the Beatles finally appeared, the crowd went wild. 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 भीड़ पगला गई. The crowd went wild. They went crazy. They went crazy. अब ये दे किसके लिए आया बेटा? आप लोग बताओ. Crowd. क्राउड के लिए. Shouted. There were over 2,000 policemen there. And when the Beatles finally appeared, the crowd went wild. They went crazy. They went wild. They went crazy. The crowd. They crowd के लिए आया ना? अब बताइए, the crowd singular है कि plural है यहाँ पे? Ruler. Crowd to plural. प्लूरल हुआ ना, Full क्राउड नहीं, तो full नहीं. प्लूरल. Plural नहीं, plural everybody. Plural. प्लूरल Plural. Plural, yes, sir. Plural. प्लूरल. Plural. Plu. Plu. Yes, Plural. Plural. sir. Plural. 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 Oh, the crowd went wild. They went crazy. They climbed over each other to get They climbed over each other to get closer. They climbed over each other. 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 They climbed over each other closer. to get closer. They climbed over each other to get closer. एक दूसरे पर चढ़ चढ़ के वो लोग नजदीक जाना चाहते थे. नजदीक किस चीज के? आवाज सुनने के लिए. Beatles. किसके नजदीक? Stage. Very good. Common sense, right? Went wild. They went crazy. They climbed over each other to get closer. It was a They climbed over each other to get closer. Closer to the? Stage. Closer to the stage, right? Closer, closer, closer nahi, closer. 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 Yeah. Closer. My students and I are close. My students and I are close. Understand? My Yes. Yeah. students are close to me. My students are Close to me. Close to me. Close to me. close. Close. So they climbed Closer. over each other. They climbed over each other. क्या over मतलब more than? फिर से over मतलब more than लगा ले यहाँ पे. They climbed over each other. No, sir. एक दूसरे के ऊपर चढ़ चढ़ गए. They climbed over each other to get closer. भाई जो खड़ा उसके आगे चढ़ जाने के लिए उस पे चढ़ के जा रहा था आदमी. They climbed over each other. Climbed. CLIMBED. They climbed over each MBED, other yes, sir. to get Climb. closer. To get closer to the stage. To get closer.
to get closer to the stage. Okay? Amazing. It was amazing. It was Amazing. amazing. मैंने Amazing. ing एडजेक्टिव और ed एडजेक्टिव पढ़ा है ना? Yes, sir. अगर सिचुएशन अमेजिंग थी तो लोग कैसा फील कर रहे थे? Interesting. Amazed. Amazed. Interested. Feel अरे amazed. अमेज्ड बोलना था, Excited. कॉम्बिनेशन था। Amazed. अगर Yes, सिचुएशन yes. अमेजिंग है तो लोग हाँ. कैसा फील करेंगे? Amazed. In, Amazed. Amazed. कनेक्शन बना? Amazed. Yes, sir. The situation is boring, तो people will feel. Bored. Bored. And the situation is amazing, then people will feel. Amazed. 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 So he said it was amazing. मतलब ये खुद कैसा फील कर रहा था? Amazed. Amazing. Amazing. गलत बोल रही हैं संयुक्ता मैम। Amazed. He feels Amazed. 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 Yes, sir. It was amazing. It was amazing. मतलब the situation was amazing, guys. Yes. Yeah. Yes, Yeah, the and the situation was people amazing. feel It amazing. means Dadaji felt. Amazed. 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 Dadaji felt Amazed. 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 Dadaji felt Amazed. amazed because the situation was amazing. 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 Yes. What songs did they play? What songs did they play? What songs did they play? क्या पूछा उसने? What What song? song did they play? महफूज हिंदी में इस सेंटेंस को ट्रांसलेट करो. What songs did they play? जल्दी. अब सिर खुजला रहा है. टाइम वेस्ट कर रहा है अपना बैठ के. चलो कोई नहीं. आफरीन तुम बता दो बेटा. What songs did they play? कौन सा सॉन्ग प्ले करे? बहुत बढ़िया मेरे बच्चा, बहुत बढ़िया. भाई आफरीन को बिल्कुल इंग्लिश नहीं आती थी, बिल्कुल नहीं. हिंदी बोल के पढ़ाया है उसको. मेरा स्पेशल प्लेलिस्ट है, ठीक है. हिंदी मीडियम करके पढ़ाए, हिंदी मीडियम क्लासेस, ताकि वो थोड़ा बहुत समझना शुरू करे. आपको लगता है ऐसा ही इतना आसान है? सब लोग को समझ में आ रहा होगा ना. लेकिन Yes. आपके महफूज सिर स्क्रैच करने लगे थे, पता है ना, आपने देखा था अभी. Sir, we can also use what song did they sing? हाँ बट वी कैन से व्हाट सॉन्ग्स डिड दे सिंग, नो प्रॉब्लम्स. व्हाट सॉन्ग्स डिड दे प्ले. म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह आ जाता है ना तो प्ले वर्ड यूज कर लेते हैं हम लोग, राइट. Yes. Otherwise, sing is definitely fine. We all understand that. What songs did they play? I liked your question. मुझे अच्छा लगा आपका सवाल पूछने का तरीका, क्योंकि आपके दिमाग में क्या चला होगा मुझे अंदाजा लग गया इससे. What songs did they play? Everybody understands? Yes. Except महफूज. महफूज नहीं समझ पाया. What songs did they play? क्यों नहीं समझ पाया वो? कौन सा वर्ड उसको फंसा दिया होगा? पूछो उससे. का हो खुदा महफूज रखे हर बला से, हर बला से चश्मे बदूर. ओके महफूज, कौन सा वर्ड फंसाया तुमको? सच बताऊं, इसने प्ले सुना होगा, इसको लगा होगा प्ले मतलब तो खेलना होता है यार, क्या बोलना है हमको, कौन सा वर्ड बोल रहा है यार. महफूज लगे रहो, ठीक है. अब एक नई मूवी बनेगी, लगे रहो महफूज भाई. ओके ओके गाइस. बिकॉज दिखाई नहीं रहा, दिखा ही नहीं रहा है. आयशा घर फोन कर दे, पापा को बोल दे कि महफूज भाई का पैसा कौड़ी बंद करो, घर बुलाओ उसको, ठीक है. उस पे खर्चा बंद करो, मेरे पे खर्च करो, ठीक है. क्योंकि सर पूछे व्हाट सॉन्ग्स डिड दे प्ले और उसका हिंदी नहीं किया वो. अच्छा महफूज, तुझे तेरे होने वाली सास की कसम, तू बता कितनी देर इंग्लिश पढ़ता है भाई दिन भर में? क्लास के बाद नहीं कर पाते सर. हाँ सर. समझ में आई बात. क्लास के बाद नहीं Yes, कर पाते हैं. भाई साहब के ऊपर 3-3 पत्नियों के 6-6 बच्चों की जिम्मेवारी है, कहाँ से कर पाएंगे? ऐसा नहीं कुछ है सर.
बताइए फिर। पापा हाथ खड़े कर देना कि दो बेटा का हम जिम्मेवारी निभा सकते हैं, बाकी का नहीं हो पाता है, नहीं कर पाते हैं, तो समझ में आ जाएगा। कह रहे हैं हम क्लास के बाद नहीं कर पाते हैं इंग्लिश की पढ़ाई। बताओ तो, कर नहीं पाते हैं, व्हाट डू यू मीन? क्या मतलब इस बात का कि नहीं कर पाते हैं? महफूज, आई एम टॉकिंग टू यू। यस सर, सुन ले सर, थोड़ा क्लास बहुत हो जाता है सर, इसके लिए थोड़ा नहीं कर पाते हैं। तो अच्छा भाई, तेरे सारे क्लासेस तो इंग्लिश में ही हैं। यस सर। दोस्तों, उसका सारा क्लास इंग्लिश में है। व्हाट सॉन्ग्स डिड दे प्ले का मतलब इसको नहीं पता चल रहा है, बाकी क्लास के चलते परेशान है। सोचो भाई महफूज, तेरा कोई कुछ नहीं कर सकता, तू फंसता रहेगा। इंडिया में से कई लाख स्टूडेंट्स हैं महफूज की तरह, जिनको पता नहीं क्या पढ़ रहे हैं वो। ठीक है, बस वो इंजीनियरिंग कॉलेज में होंगे। ठीक है, बात समझ में आ रही है? इंजीनियरिंग, प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में होंगे, लेकिन पता नहीं क्यों सारा सिलेबस इंग्लिश में, और पल्ले कुछ नहीं पड़ता। बस किसी तरह से कॉलेज को आगे बढ़ाना है, लड़कों को पास कराते जाना है। आपको पता है, एक सर्वे किया गया, बताया गया कि भारत के जितने ग्रेजुएट्स होते हैं इंजीनियरिंग के, उसमें से आधे से ज्यादा नौकरी करने लायक नहीं हैं। और ये कौन लोग हैं पता है? बस उस वजह से कि उनको ना कुछ कभी उनका बेंच टेस्ट नहीं किया गया, कि कहते हैं ना कि भाई आप कहाँ पे हो, टेस्ट ही नहीं किया गया उनको कभी। सीधे यहाँ पर एडमिशन हो गया, वहां पर पास कर गए, तो वो फाइनली, जैसे हम लोग कैसे बैचलर्स डिग्री ले लेते हैं नालंदा कॉलेज से, किसी भी सब्जेक्ट में डिग्री मिल जाता है, वैसे ही इंजीनियरिंग की डिग्री होती है। यही वजह है। तो भाई महफूज, इतना जान लो, हम भले ही कड़वा बोलते होंगे थोड़ा बहुत, ठीक है, नहीं लेकिन हम सर। तुम्हारे इंटरेस्ट में बोलते हैं, क्योंकि कल के डेट में तुम क्या करोगे? पापा जब तक पैसा कमा रहे तब तक तो ठीक है, तुम कैसे करोगे भाई? सोच लेना, ओके? तो व्हाट सॉन्ग्स डिड दे प्ले एवरीबॉडी? हिंदी। व्हाट सॉन्ग्स डिड दे प्ले की हिंदी करो। उन्होंने कौन सा गाना बजाया? कौन से सॉन्ग प्ले मुझे इतना जानना है कि बचपन से आज तक तुमने व्हाट की कौन सी हिंदी सीखी थी? क्या मतलब बताया था तुमको? क्या? व्हाट मतलब? क्या? क्या? वोट में क्या? और अभी व्हाट की हिंदी तुमने फटाक से क्या कर दी? कौन? कौन सा? कौन सी? कॉन्टेक्स्ट अगर सही मिल जाए तो अंदाजा लग जाता है हिंदी का, राइट? हम्म। आप पूछो मेरे से, ठीक है? आप मेरे से पूछो, कौन कौन सा खेल देखते हो टीवी पे आप सर? What What do you Game, what game do game you that do you Kind of game you watch on kind of TV? game? Yeah. What अपूर्वा, kind? अपूर्वा मेरा लेसन भूल गई और अपना नॉलेज जो पीछे से आता है उसको लेके आ गई। अपूर्वा, यही आप करती हैं हमेशा मेरे बच्चे। आपको पता नहीं चलता कि सर किस बात को हाईलाइट करवाए, हमको क्या चाहते हैं कि हम सीखें। आपको लगता है हम आपको टेस्ट कर रहे हैं, तो आप पीछे से लेके आ जाती हैं अपनी नॉलेज। What बताइए बेटा। game did you watch on TV? चलिए अपूर्वा बेटा बोलिए। What game did you watch on TV? अच्छा ठीक है, डिड यू वॉच क्यों बोला आपने? What game do you What watch in? what game What do you watch on TV? अच्छा what ठीक है। अच्छा फिर से एक बार अपूर्वा, मैं आपको बहुत बार आपको मौका दूंगा ताकि आप अपनी गलतियों को खुद से सीखे करेक्ट करना। हाँ फिर से बोलिए। What game do you watch on TV? What ठीक, games do you watch on TV? अब हो गया सही, फाइनल फाइनल हो गया। देख लिया आपने, गलती समझ ली। Yes, sir. Do you? हाँ तो ऐसे ही गौर से सुना करिए ताकि आपको गलती समझ में आए। व्हाट सॉन्ग्स डिड दे प्ले? व्हाट सॉन्ग्स डिड दे प्ले? और आप खाली वहां तक नहीं रुकेंगे, आप आगे जाएंगे। अब व्हाट के साथ आप कोई नाउन लगा सकते हो। व्हाट सॉन्ग्स, व्हाट मूवीज, व्हाट स्पोर्ट्स। ओके, अब बताइए कौन कौन सा खाना डिश आपको अच्छा लगता है? कैसे पूछेंगे? what What dishes dishes do you dishes like? do you Do like? you Did you like? do you इजी है, like? What इजी dishes है। do you like? Like eating? अब बोलो What कौन कौन dishes सा do कलर you आपका like? फेवरेट है? कैसे पूछेंगे? What colors What do you color like? what do you colors do like? you like? Do you like? What वेल color डन, do you like? वेरी गुड जॉब, वेरी गुड। Do you व्हाट like? का मतलब खाली क्या नहीं होता, आप समझ गए ना? Yes, sir. अभी एक लाइन और बता देते हैं जल्दी से। विच आपके दिमाग में आ रहा होगा, विच का यूज करना
जब आपको दिए हुए ऑप्शंस में से चुनना हो, कौन सा? ओके, दिए हुए ऑप्शंस में से चुनना हो तो कौन सा यूज करोगे? Which? मैं आपको दे रहा हूं चिकन या मटन, कौन सा रेसिपी आपको, कौन सा डिश आपको ज्यादा पसंद है? तो हम बोलेंगे विच डू यू लाइक बेटर, चिकन और मटन? Yeah. विच डिश डू यू Which लाइक do बेटर, you like? चिकन और मटन? Do you like better? Which which डिश, like better? Which dish do you like better? ठीक है। मान लो मैं आपको 4-5 ऑप्शन दे देता हूँ, पूछता हूँ इसमें से कौन कौन सा पसंद है, ठीक है? बात समझ में आ रही है? तो आपको Which पूछ dishes do लेंगे you विच like डिशेस डू यू लाइक, ए, बी, better? डी और ई से ऑप्शन देंगे, ओके? सो व्हेन यू हैव ऑप्शंस, कौन सा चुनोगे दोस्तों? विच वर्ड से Which पूछना है, और ऑप्शन नहीं तो which? आराम से बात बोलो ना, कोई टेंशन नहीं, ओके? एनी प्रॉब्लम्स? Okay, sir. No, sir. कलर्स डू यू लाइक बेस्ट, व्हाट Which कलर्स? player do you like? Virat Kohli or Sachin Tendulkar? What players are your favorite? Everybody. What Virat players Kohli. are your favorite? Everybody. समझ गए? Yes, sir. क्या Yes, sir. आप भी सरेंडर कर देंगे महफूज की तरह कि नहीं हो पाता है? देखो ना, वो जिस उसका कहना है समय नहीं है, तो ग्राउंड फ्लोर पे हम नींव पे काम नहीं करेंगे, हम सीधे टॉप फ्लोर बनाएंगे। समय कम है, हमको सीधे टॉप फ्लोर बनाना है, हमको ऊंचा बिल्डिंग बनाना है भाई। हमारे पास टाइम नहीं है, हम फाउंडेशन पे काम नहीं करेंगे, हम सीधा ऊपर वाला बिल्डिंग ठोक देंगे, एकदम टॉप फ्लोर बना देंगे, है ना महफूज? टाइम नहीं है तेरे पास, राइट? ऐसा बोल रहा ना जैसे मैंने कहा भाई पैर दबा दे, भाई मेरा पैर दबा दे। नहीं सर, समझ नहीं है, कैसे दबाएंगे पैर? मेरे को पैर दबाने के लिए कह रहे हैं हम, क्या है यार? महफूज को कब से हम पीछे पड़े, आप लोग देख रहे हो ना, आप सब इस बात के गवाह हो। क्या गलत तरीके से पीछे पड़े कि एनकरेज कर रहे हैं पढ़ने के लिए? क्योंकि नहीं करता है वो, तो करता ही नहीं, खुद मान लिया कि समय नहीं मिलता उसको। आप सब जानते हो कि लड़कों को किस चीज के लिए समय मिल जाता है, राइट? वो समय इंग्लिश को दे भाई। Well, the problem was that the screaming was so loud. When the grandson asks, what songs did they play? He answers in a long way. Well, the problem was that the screaming was so loud. Listen, Beta. Listen, everyone. It was amazing. What songs did they play? Well, the problem was that the screaming was so loud, you couldn't hear the music. We couldn't. Well, the problem was that the screaming was so loud, you couldn't hear the music. अलग अलग हिस्से तोड़ के समझना है दोस्तों। और आप कई बार सुन चुके होंगे घर पे। मुझे बुरा क्या लगता है कि मैं यहाँ प्ले कर आता हूँ और आप मेरे सामने ऐसा फेस देते हैं कि मैंने तो सुना ही नहीं घर पे। ये मत करो, ये बहुत नुकसानदेह है तुम्हारे लिए। ऑडियो फाइल्स सबसे इंपॉर्टेंट है। Well, the problem was that the screaming was so loud that you couldn't hear the music. चलो शुरू करो। ऊपर पे बैठ जाइए। Well, the problem was the screaming was so loud you couldn't hear the music. Couldn't hear the music. Couldn't hear इसको it. हिंदी में बोल लेते हैं हम लोग, ओके? एक बार हिंदी में बोल लेते ताकि महसूस कर सके हमने क्या सुना। अरे समस्या ये था ना, परेशानी ये था ना कि लोग इतना चिल्ला रहे थे ना कि गनवा का आवाजवा कान में नहीं जा रहा था। कान में नहीं जा रहा था, नहीं आ नहीं आ रहा था। अब चले इंग्लिश में जाते वापस। हिंदी बस एक बार के लिए, बाकी मेन हमारा इंग्लिश ही है। वेल, द प्रॉब्लम वाज Screaming was so loud. Screaming was so loud. Screaming was so loud. So loud. Couldn't hear. You couldn't hear the music. समझ में आई बात? अभी इसमें बहुत कुछ सीखने को है, बहुत कुछ। आई जस्ट वॉन्ट यू टू रिपीट द सेंटेंस। सीखेंगे कब? जब हमें पता होगा क्या बोलना है तब ना। पहले बोल के दिखाओ क्या बोलना है। वेल, द प्रॉब्लम वाज The problem was screaming was so loud that you couldn't hear the music.
That we couldn't hear the music. We couldn't hear the music. अब सुना, so loud that you couldn't hear the music, so loud that you couldn't hear the music. Repeat करो. So loud that you So loud that you couldn't hear the music. So loud that you couldn't hear the music. so loud that you Couldn't hear the music. couldn't hear the music. Okay. बोलो, क्लास में इतना हल्ला रहा था कि सर का आवाज नहीं आ रहा था. The class was so noisy Class was so Class was noisy so that noisy we that couldn't hear that we couldn't hear the teacher. couldn't hear the teacher. The teacher. The class That was so noisy so noisy class was so noisy that we couldn't hear the sir. We couldn't hear the teacher. Sir. अरे इतना भीड़ था कि एक वो गोलगप्पा नहीं मिला हमको, या गोलगप्पा नहीं खा सके, क्योंकि गोलगप्पा नहीं खा सके. It was so crowded It was so It was so crowded that I we couldn't get we didn't any. eat. that I We didn't couldn't get any golgappa. I couldn't get even one piece of golgappa, even one golgappa, right? One piece of one piece of golgappa. अरे पनिया इतना ठंडा था कि पैर तक नहीं डाल सकते थे हम लोग. The water was so cold was so cold that we couldn't enter the We Entered the water was so cold that we मुझे समझ में आ गया. दैट तक आप आ गए तो बस उतना ही तक चाहिए था मुझे. उसके आगे का टेंशन आते चलता रहेगा, कोई टेंशन नहीं है. was so cold दैट है ना. that ओके we couldn't सर सर इतने स्ट्रिक्ट है ना कि कोई एक शब्द नहीं बोलता. सर इज सो स्ट्रिक्ट that nobody says a word. Nobody says a word. Nobody says says a word. Says a word in front of him. No, nobody says a word in front of him, right? Nobody says a word in front. Where did RK go? RK, he was here. He's gone. Just a second. All right. सुनो, अब इसमें बड़ी मजेदार बात सुनना. The screaming was so loud that you couldn't hear the music. कौन बोल रहा है? Grandfather. ग्रैंडपा बोल रहे हैं ना. तो वो यू क्यों बोले? यू तो हो जाएगा वो उसका बेटा, ग्रैंडसन. तो ग्रैंडसन तो था नहीं वहां पे, वो यू क्यों बोले? द स्क्रीमिंग वाज सो लाउड दैट यू कुडंट हियर द म्यूजिक. नोबडी नोटिस्ड इट. अरे यार यू क्यों बोला? ये ग्रैंडसन तो वहां था नहीं, तो फिर यू क्यों अगर वो बोला? जाता सुना रहे हैं ना वो. हाँ जरा सुने आपका लॉजिक, जरा बताइए संयुक्ता मैम, बताइए क्यों बोला सुना वो? रहे हैं ना सर, क्या सुना रहे हैं? मतलब वहां का स्टोरी सुना रहे हैं ना. अच्छा तो अगर वो जाता स्टोरी, तो उसको भी एक नहीं सेकंड मोनी रुकना जरा सा. संयुक्ता मैम तो स्टोरी सुना रहे वो, तो वो यूं बोलेंगे कि इतना जोर का हल्ला हो रहा था, आई बोलेंगे, यू कुडंट हियर द म्यूजिक. सुन नहीं सका. कॉमन कौन सर वो बोल रहा प्रॉब्लम है, ये अगर नहीं हो है जाता सर. उसको क्योंकि भी हम सुनाई आधा से नहीं पढ़े देता हैं ना इसलिए. सर, इसलिए मुझे इतना समझ नहीं आया है. नहीं 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 नहीं, इसका इसका कोई कनेक्शन नहीं मैम. मैम ये बोल के नहीं आप बात सकती. इसका कोई कनेक्शन नहीं पीछे से. ओके मैं आपको बताता हूँ. होता क्या है ना कि जैसे जैसे चीजें आगे बढ़ेंगी ना संयुक्ता मैम, आपको चैलेंज ये आएगा कि हम जो पढ़ाएंगे उसको आपको हिंदी से कनेक्ट करना पड़ेगा, और कई नई बातें ऐसी आएंगी जो थोड़ा सा ध्यान देकर के आप तुरंत सीख सकती हैं. लेकिन अगर आप सब चीज को पीछे से कनेक्ट करना चाहोगे, जो आप जानते हो, तो बस जानते थे तक हो गया, यूनिट 2 3 4 5 तक खत्म. अब बहुत सी बातें ऐसी आएंगी जो आप पहली बार सुनेंगी. ठीक है, आपको उसको थोड़ा सा दिमाग लगा के समझ जाना है, बहुत आसान से हो जाएगा. मोनी आप बताओ. मोनी
अगर वो जाता उसको भी सुनाई नहीं देता, इसलिए बोल रहा है। अरे बहुत बढ़िया मेरे बच्चे, बहुत बढ़िया। सुनो दोस्तों, आप हिंदी में भी कई बार तुम वर्ड यूज करते हो जब आप सामने वाले के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, लोगों की बात कर रहे हैं। खुद मैं के बारे बताता हूँ में। आपको एक सिचुएशन हाँ। बताता हूँ। अम, जहीर खान से एक इंटरव्यूअर बात कर रहा था और पूछता है ना कि जहीर खान क्या प्लानिंग है आपकी इस मैच को लेकर के। तो बोलते हैं क्या कि आपको कोई प्लानिंग व्लानिंग करने की कोई जरूरत नहीं है, आप सही जगह बॉल डालोगे तो आपको विकेट्स मिलेंगे। अब वो बोल रहा है जहीर खान। तो क्या तुम्हारे हिसाब से ये इंटरव्यूअर जाएगा बॉलिंग करने जो बोल रहा था अगर आप सही जगह बॉल डालोगे तो आपको विकेट मिलेंगे ही? वो आप कौन है, वो आप कौन है उसके हिसाब से, जहीर बॉलर खान के हिसाब से? बॉलर बॉलर बॉलर। 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 जो बॉलर। कोई भी डालेगा तो मिलेगा। कोई भी बॉलर जो बॉलिंग कर रहा बॉलर। होगा उसको सही जगह बॉल डालना, विकेट मिलेगा। तो कई बार हिंदी में आप वर्ड यूज करते हैं या तुम वर्ड यूज करते हैं जब आपका कहने का मतलब होता है लोग, ना कि सामने वाला इंसान। जैसे संयुक्ता मैम, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। देखिए, अगर अगर आप अपने स्टूडेंट के साथ अच्छे से पेश आएंगे तो जाहिर सी बात है स्टूडेंट भी आपकी रिस्पेक्ट करेंगे ही। ठीक है। मान लो मैं ये अदीब को ये लाइन बोल रहा हूँ, अदीब देखो बेटा, ऐसा है ना बेटा कि अगर आप अपने स्टूडेंट के साथ अच्छे से पेश आते हैं तो आपका स्टूडेंट आपका रिस्पेक्ट करता है। तो अदीब बोलेगा सर हम टीचर नहीं है, ऐसा थोड़ी है। वो समझ जाएगा कि हम बोल रहे हैं कोई भी टीचर। कोई भी राइट? टीचर, यस सर, कोई बात भी समझ में आ गई टीचर। दोस्तों? यस। कोई भी स्टूडेंट, यस सर। हाँ। तो इंग्लिश में भी ये चीज होता है ऐसा। आप यू बोलते हैं जब सामने वाले के बारे में बात नहीं कर रहे, आप बात कर रहे, समझ जाइए किसके बारे में, कॉन्टेक्स्ट से समझ में आ जाता है। और लाइक सर मोनी ने लगाया कॉमन। अंदाजा कि आप भी वहां होते, नहीं आता मतलब जो लोग थे वहां उनको आवाज सुनाई नहीं दे रहा था। ओके। पीपल, यू मतलब पीपल, यू मतलब पीपल। या पीपल। पीपल। People couldn't hear the music. You couldn't hear the music means पीपल पीपल couldn't hear the People music. couldn't hear the पीपल music. couldn't hear द listen म्यूजिक। to music क्यों नहीं बोला, hear music क्यों बोला? उसकी वजह बता देता हूँ। सुनाई देने वाला है सर कुछ हाँ प्रॉब्लम। एग्जैक्टली रेनू, आई एम वेरी प्राउड दैट आपने एकदम वही जवाब दिया जो मैं सुनना चाहता था। देखिए दोस्त, अगर आपको मेरी बताई हुई बात ध्यान में से सुनोगे तो रह जाएगी और वही जवाब दे दोगे। और इससे मैं जो बताता हूँ ना उससे आपका सॉल्व होता है प्रॉब्लम। म्यूजिक चल रहा था, आप कोशिश कर रहे थे लिसन करने की, लेकिन म्यूजिक कान तक आया ही नहीं। यू कुडंट हियर द म्यूजिक बिकॉज हल्ला था बहुत ज्यादा। यू कुडंट हियर द म्यूजिक, पीपल कुडंट हियर द म्यूजिक, इसलिए लिसन की बात यहां नहीं हो रही है। वो लोग कोशिश करते, दे वर ट्राइंग टू लिसन, राइट? पीपल वर ट्राइंग टू लिसन टू म्यूजिक, बट सम पीपल वर सो नॉइजी दैट पीपल कुडंट हियर द म्यूजिक। कैन यू हियर मी एवरीवन? यस यस सर। सर। मतलब आई समझ में कैन सर हियर वी आया यू। कैन। कि आपकी आवाज, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक, ये पूछा मैंने। हमें ये थोड़ी बोले कि आप ध्यान दे रहे हैं कि नहीं। यस अगर सर। मैं यस ध्यान सर। ध्यान देने वाली बात करूंगा तो मैं कहूंगा आर यू लिसनिंग टू मी? यस सर। यस सर। देखो, 6-7 लोग हैं जिन्होंने कैमरा बंद कर रखा है। मैं इन सब को उठा करके फेंक रहा हूँ वेटिंग रूम में। रुको। अरे तो ही सर आई बैठ। टोल्ड मी माय रीजन। ना ना ना, आपको नहीं हटा रहा शब्द ना, आप कैसे सोच सकती है ऐसा? कैसे? मुझे हटाना है तो सिर्फ कल्पना को हटाना है। कल्पना, Yes. व्हाई आर यू सो क्वाइट दीज डेज? No, no, sir, I'm not quite listening. आर यू श्योर? Yeah, डिड यू लर्न समथिंग इंटरेस्टिंग, यूजफुल? yeah, I was learning. ओके, डिड यू लर्न समथिंग यूजफुल? Everything is useful. Everything was useful, sir. You're not saying yes because हम पूछेंगे आपसे कि what did you learn? Okay, guys, आपको रिकॉर्डिंग देखना है और मैं भेजता हूँ रिकॉर्डिंग। ओके। यस एंड सर। पे अटेंशन उन जगहों पे जहां पे मैंने एक्सप्लेन किया। मैं बहुत पेशेंटली एक दिन में भी खत्म कर सकता था ये ऑडियो। ओके, बट आई हैव स्पेंट 2 days ऑलरेडी एंड आई एम गोइंग टू फिनिश इट टुमारो। बट आप आज भी जाकर के 10-15 बार सुन लेना। अगर हर दिन 10-15 बार सुन रहे तो फाइनल डे तक 30 टाइम्स हो जाएगा। आप समझ सर रहे हो? एक ऑडियो सुनने में पूरा 1 घंटा लग जाता है सर। है ना, लगता है ना शबनम? इसी को कहते हैं टाइम यस देना सर, पूरा इंग्लिश। 1 घंटा तो। इसी को कहते हैं टाइम देना इंग्लिश को। और अगर जिसने इंग्लिश को टाइम नहीं दिया ऐसे, तो फिर क्या होगा पता है? आप हिंदी इंग्लिश कर पाओगे। और ऐसा करके भी कई लोग बहुत अच्छा घर चलाते हैं, मैं सच सच बता रहा हूं आपको।
बहुत अच्छा पैसा कमा लेते हैं कुछ लोग, वो अलग बात है। लेकिन अगर आपके सामने किसी दिन कोई ऐसा इंसान आ जाए ना जो सिर्फ इंग्लिश बोलता है और आपकी मदर टंग उसको नहीं आती है, उस दिन आपका टेस्ट है क्या आपकी इंग्लिश का कोई वैल्यू है कि नहीं है। हाँ या ना दोस्तों? Yes, sir. यस सर। यस सर। अगर But मान लो आप किसी ऐसे इंसान से बात करो जिसको हिंदी आती है लेकिन आप उससे इंग्लिश में बात कर रहे हो, तो ये तो एक तरह से आपके पास ये क्या कह सकते हैं, एक एक्स्ट्रा लग्जरी है कि आप इंग्लिश में बात करें। तो हिंदी तो है ही आपके पास, उसको भी हिंदी आती है, आपको भी हिंदी आती है, आप बोल सकते हो। बट आपके सामने कोई ऐसा इंसान आ जाए जिसको हिंदी नहीं आती है, क्या आप उससे बात कर सकते हैं इंग्लिश में? क्या आपकी बात वो वैसे ही समझ रहा है जैसे आप बोलना चाह रहे हैं? आपकी बातचीत सक्सेसफुल हुई? अगर नहीं तो क्या ही फायदा हुआ हमारे इंग्लिश सीखने सिखाने का? व्हाट्स द पॉइंट? तो ये yes, एक स्टैंडर्ड है, एक स्टैंडर्ड है चेक करने का। और बाकी और भी कई हैं, जैसे एग्जाम पास करना है तो एग्जाम के लिए करेंगे हम लोग तैयारी, राइट? लेकिन अगर लैंग्वेज सीखने की बात कर रहे हैं तो ये हमारा अल्टीमेट गोल होना चाहिए कि हम अगर कुछ बोले तो सामने वाले को समझ में आ जाए, वो बोले तो हमें समझ में आ जाए। मैंने एलिसन को बुलाया था अपने प्री इंटरमीडिएट क्लास में, ओके? और आपके क्लास में भी बुलाऊंगा किसी दिन उनको। एक अमेरिकन फ्रेंड है मेरी, और I आएंगी और watched आप that लोगों video, से sir. बात। यस मोनी, I watched that video. you Sir, watched that are video? you talking Yeah, sir. about Rab? No, Sarabi is from Iraq. वो तो इराकी Yes, है। sir. Sarabi is Iraqi. I'm talking about Allison, the American lady. yes, English is her first language. सराब से बात करने में थोड़ा भी मुश्किल इसलिए है बिकॉज सराब इज ऑल्सो इम्प्रूविंग हर इंग्लिश। लेकिन आप सोचो ना, दो कमजोर लोग जिनकी इंग्लिश अच्छी नहीं है वो तो मुश्किल में है, समझ में आता है। एक को इंग्लिश आती है, उसकी मदर टंग है, तो जाहिर सी बात है आप जो बोल रहे हो उसको समझ में आना चाहिए ना, वो जो बोले थोड़ा बहुत आपको समझ में आना चाहिए ना। अगर वो फेल कर जाए तो वो सीखने का कोई फायदा नहीं है। तो चाहे जितना देर लगे शबनम, ओके, ऑडियो फाइल सुन के जो आप Yes, sir. सीखोगे ये आपको वहां पहुंचाएगा जहां आप एक दिन प्राउडली बोल सकते हैं कि मेरी इंग्लिश सिर्फ इस लोकल जगह के लिए नहीं है, मेरी इंग्लिश पूरी दुनिया के लिए है। आपको पता है ना दोस्तों, आपके इस शहर में कितने टीचर्स हैं जो अपने आसपास के लोगों को पढ़ाते रहते हैं, हिंदी इंग्लिश इंग्लिश हिंदी करते रहते हैं, ट्रांसलेशन ग्रामर। बट when you are teaching somebody whose mother tongue is not Hindi, okay, and I have taught so many people from India and abroad as well, right? Those people who don't know any Hindi, तो मैं उनको कैसे सिखाता हूँ कोई भी चीज, नया चीज कैसे बताता हूँ उनको? थ्रू इंग्लिश ओनली, राइट? yes. और वो इंग्लिश में इंग्लिश को समझते हैं। जैसे इराकी Sir, लेडी एक आई है मेरे क्लास if में। someone, sir, if someone speaks English with fluence and I didn't speak well in front of them, then we feel very guilty. हाँ, तो दैट्स द पॉइंट, इसीलिए मैंने कहा ऑडियो इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो आपने मुझे कहा ना सर 1 घंटा लग जाता है, मैंने कहा 1 क्या 2 घंटे लगे उससे मतलब नहीं है, आपको Yes, वो sir. काम करना ही है। ओके एवरीवन? Okay, sir. Yes, Sir, right please is. send yesterday Sir, video now, sir. Yes, sir. I'm Sir, I have a sharing, ma'am. sentence. I'm sharing. Okay. Now, Sir, because I have a sentence. I will What watch did it. you say, Moni? I have a sentence. Yes, your sentence, Moni. Go ahead. Sachin was the youngest player ever to play international cricket at very early. Very good sentence. Sachin is the youngest player ever Yeah. to play शाम to को। play international cricket. Very good. Very good. No problems, Kashif. That's fine. I'm going to end the class today, and I just want you guys to feel motivated कि आपको करना क्या है, कैसे करना है, और वो करते जाइए। जहां मुश्किल हो मुझसे बात करिएगा आप लोग, okay? Because I'm always there for you, okay? Bye Yes. everyone. Bye, bye. Bye, sir. sir. Bye. Yeah. Bye. Yes, sir. Bye. Bye.